These are that is the Cochrane, both formula as presented with the Cochrane and next formula when you have knowledge of the total population, it is the simple. But when you want to design the experiment and you collect the sample or you determine the number, so it is necessary to know something more. First, the null hypothesis. It is necessary to know the null hypothesis. Null hypothesis हम हल्का सा समझा चुके हैं. And null hypothesis is represented by H naught. Null hypothesis is represented by H0. हमने ये भी आपको बतला चुका है कि if the null hypothesis is true, if the null hypothesis is true but rejected statistically, if the null hypothesis is true and rejected statistically by any fault कुछ भी हो सकता है, वो बाद में पता चलता है, then we commit a error. उस error को हम क्या बोलते हैं? Alpha. And if the null hypothesis is false and we approve the null hypothesis, then again we commit a error. Then what is the error? Beta. Okay. Now the null hypothesis, you know, it not represents a statement that contradicts the researcher or experimental expectation or prediction. Null hypothesis क्या बोलता है कि आपका expectation और prediction क्या है, ठीक है? And commonly we observe or we represent that there is no difference if we use the any trial, medicinal trial or toxicology trial or anything other. But if you determine and frame out the separate null hypothesis, then it represents again separate. So then it is the same, and I am writing here, commonly it represents no change. Commonly ये किसी चेंज को रिप्रेजेंट नहीं करता. यह माना जाता है कि null hypothesis represent there is no effect or there is no change. Second one, the p-value signifies the probability of obtaining a result as extreme as null hypothesis is true. यहाँ पे इसको समझिए. ये लाइन ये बोल रहा है कि जब अगर null hypothesis सही है, if the null hypothesis is true, then what is the maximum extended value of the of the Z और कॉन्फिडेंस इंटरवल. मतलब यहां से यहां तक अगर आ रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? नल हाइपोथेसिस सही. तो इट रिप्रेजेंट द एक्सट्रीम्स. ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? एक्सट्रीम्स. दैट इज द पी वैल्यू. इन लास्ट क्लास फिर आएगा ये आगे. हम लास्ट क्लास में भी ये बोले थे कि व्हेन यू यूज द डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जेड है या जो भी है, काई है, बहुत सारे टेस्ट है, तो उसके टेबल्स होते हैं. And that table is represented in the form, not in the form of the actual value, but it is represented in the form of the probability value. It represents in the form of probability. That is the P. That is the P. And that P represents the extended value, maximum extended value in the both ends. In the both ends. The p-value signifies the probability of obtaining a result as extreme as null hypothesis is true. As extreme as null hypothesis is true. अगर null hypothesis true है तो वो p-value कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, ये कौन बतलाएगा? p-value. A p-value that is less than or equal to the significance level. सिग्निफिकेंस लेवल का क्या है? 0.05 है, 0.001 है, 0.01 है, यही तीन है. 0.05 से नीचे तो उसका कोई मतलब होता नहीं है. तो नाउ ये क्या बतला रहा है कि वहां तक ये स्टैटिस्टिकली क्या है? सिग्निफिकेंट है. द सिग्निफिकेंस लेवल कॉमनली यूज्ड आर 0.01, 0.005 एंड 0.001. ये तीन लेवल में आप यूज करते हैं. बहुत एक्सट्रीम होता है जब आप 0.00
1, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी लेके जाना चाहते हैं तो ये जो नेचर आ रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा। इसको हम क्या बोलते हैं? अल्फा क्रिटिकल लेवल। इट इज कॉमनली रेफर्ड एज द अल्फा क्रिटिकल level. The second part, that is the alpha. We regulate the alpha error. We identify the alpha error. It is easy. ये easy है. But in the sampling, it is also necessary to minimize the beta error. So, a study's power strength is a statistical capability and diminishes the chance of making a type 2 error. पावर मीन्स द परसेंटेज, कितने परसेंटेज को हम सेलेक्ट करें या कंपेयर करें उस चीज को। टाइप 2 एरर देयर बाय लोअरिंग द चांस ऑफ इनकरेक्ट निगेटिव कंक्लूजन, क्योंकि दोनों था। एच नॉट, अगर इफ द एच नॉट इज ट्रू एंड रिजेक्टेड देन इट कमिट्स अल्फा एरर, बट इफ इट इज wrong and accepted then it represents the beta error. That means it is the negative conclusion. तो ऐसा नहीं कि पॉजिटिव कंक्लूजन को हम देखें और निगेटिव कंक्लूजन ही हमसे एक्सेप्ट हो जाए, तो वहां भी वो गलती हो जाएगी। एंड निगेटिव कंक्लूजन इज ओनली प्रिवेंटेड इफ यू इंक्रीज द मोर नंबर, यू डिटरमाइन ए सेलेक्टेड नंबर। So now this statistical power is denoted as 1. 1 means total 1 minus 1 minus alpha. Sorry, beta. And a power of 0.8. इसको हम क्या बोलते हैं? Power of 0.8. That is the 80%. हो जाएगा। 0.8 है तो 80% होगा, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। is deemed optimal for effective detecting a statistically significant distinction. Clear? Now, the standard deviation suggests the extent of a spread within a given data set. ये क्या करता है? डाटा जो आप ले रहे हैं उसका सैंपल में वो क्या बताता है? एक्सटेंट। एंड कॉमनली अभी हम आई एम सेइंग जस्ट दैट 0.5 एच का वैल्यू हम कितना लेते हैं? 0.5। दैट इज द 50%। दैट इज द 50%। दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट वी यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द सैंपल नंबर व्हेन वी यूज द स्पेसिफिक रिसर्च डिजाइन। स्पेसिफिक रिसर्च डिजाइन, अगर हम स्पेसिफिक रिसर्च डिजाइन को यूज कर रहे हैं तो ये चीज को हमको कंसीडर करना पड़ेगा। फर्स्ट जो रिसर्च डिजाइन होता है इसको हम बोलते हैं क्रॉस सेक्शनल स्टडी। इसको हम क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल स्टडी। अब क्रॉस सेक्शनल स्टडी क्या है कि इफ यू वांट टू डिटरमाइन एनी फैक्टर which is responsible for the any specific changes in transverse time. A cross-sectional study, also called transversal study, prevalence study, or cross-analysis, is a type of research that focuses on data from a population or a typical subgroup at a specific point in time. Suppose in any area, any particular disease is more prevalent. Any particular disease is more prevalent. वहाँ पे वो disease ज़्यादा है. And we want to analyze the etiological conditions. We want to analyze the factor. तो वहाँ पे इसको हम क्या बोलेंगे? क्रॉस सेक्शनल। उस पॉइंट ऑफ टाइम में, उस पॉइंट ऑफ टाइम, ये ऐसा नहीं कि 5 साल पहले क्या था, आगे 2 साल क्या था, वो नहीं। दैट इज इन द पॉइंट ऑफ टाइम। एंड फॉर द स्टडी ऑफ ऑल सच टाइप ऑफ वर्क we use 2 terms, incidence and prevalence. First term is incidence, second term is prevalence. Prevalence represent total disease or factor appeared in a specific period per a specific population. Per a specific population. Number of a specific population. That means
we determine at least 2 points here. One time 2004 देख रहे हैं, जनवरी देख रहे हैं, फरवरी देख रहे हैं, पूरे साल का देख रहे हैं, किस महीने का देख रहे हैं. एंड सेकेंड क्या कि कितने नंबर पे उसको एनालाइज कर रहे हैं. 10,000 पे देख रहे हैं, 1 लाख पे देख रहे हैं, 10 लाख पे देख रहे हैं. तो दैट इंसिडेंस इज रिप्रेजेंटेड द वैल्यू पर 10,000 और पर 1 lakhs or per 1,000 like this. Commonly you use per 10,000. Commonly you will use. But if any disease is more rare, अगर बहुत रेयर है वो डिजीज किसी पॉपुलेशन में या कोई चेंजेज हो रहा है कुछ पॉपुलेशन में, वो बहुत रेयर है या स्लो है, तब उसको हम क्या करेंगे, उसके नंबर को बढ़ा देंगे, पर लैक्स कर देंगे, पर 10 lakhs कर देंगे. बट इट शुड बी मेंशन, उसको आपको मेंशन करना. And in this condition, we determine the sample. अब वहां भी आपको सैंपल को डिटरमाइन करना पड़ेगा. ठीक है, तो दैट इज द प्रिवेलेंस. ये जो पूरे एरिया में हम बोले उसको क्या बोले, प्रिवेलेंस. इसको क्या बोला गया, प्रिवेलेंस. टोटल डिजीज, टोटल एब्नॉर्मलिटी ऑब्जर्व. बट द स्पेसिफिक, द डिजीज appeared specifically in that particular time, तब उसको क्या बोलेंगे हम, इंसिडेंस. तब उसको हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंस. सपोज ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द कालाजार, ए पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द कालाजार. तो कालाजार अगर किसी को हो रहा है, दैट मीन्स इट विल कंटिन्यू फ्रॉम द 1 month 1 year और 2 year ट्रीटमेंट. उसको ठीक होने में 2 year का ट्रीटमेंट लगेगा. एंड उसको फाइनल उसके जो न्यूट्रलाइजेशन होंगे एंटीजीन्स के, उसमें उसको 3 वर्ष लग जाएगा. उसको कितना लग जाएगा. तो अगर आज कोई सर्वे हो रहा है विसरल लेशमैनियासिस पे, तो कुछ तो होंगे जो पहले से होंगे, जो 1 वर्ष पहले हुए होंगे बीमार, या 2 वर्ष पहले हुए होंगे, और कुछ जो होंगे वो फ्रेश, मैंने इस साल जिनको इन्फेक्शन हुआ होगा. तो जो अगर ईयर वाइज हम देख रहे हैं, तो जो इस साल इन्फेक्टेड हुआ वो क्या हो गया, इंसिडेंस. और जो पूरा डिजीज हो पॉपुलेशन में है वो क्या हो गया, प्रिवेलेंस. क्लियर. नाउ द सैंपल साइज फॉर्मूला यू सी हियर इज जस्ट अपीयर लाइक द फर्स्ट वन. देखने में वैसा ही लग रहा है ना, वहां से डराइव भी हुआ है, बेसिकली ये वहीं से डराइव हुआ. जेड स्क्वायर दैट रिप्रेजेंट द 1 minus अल्फा 2 माने अल्फा डिवाइडेड बाई 2, अल्फा 2. दैट मीन्स द अल्फा वैल्यू ऑफ द जेड. अगर आप 0.05 ले रहे हैं तो 1.96. अगर आप 99% ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो उसका जेड का वैल्यू, दैट स्क्वायर पी हियर चेंज हियर. वहां पे हम कितना लिए थे, 0.5. हियर पी रिप्रेजेंट द प्रिवेलेंस. Here P represent the prevalence, and then you divided 1 minus P for the Q. If suppose the prevalence is 20%, that means the P value converts into the 0.2. ये कितना हो जाएगा, 0.2. Then it converts into the Q is 1 minus 0.8. 1 minus 0.2. कितना, sorry 1 minus 0.2. That is the 0.8. Now D represents the margin of error or precision. Margin of error or precision. That means it represents the same value. यहाँ पे लिखा हुआ है, it is mentioned. That formula is derived from the Kocher. Formula presented by the Kocher. Kocher ने जो derive किया था वहीं से ये derivation है, but some variation with some वेरिएशन, कुछ यहाँ पे वेरिएशन है. एंड दिस इन दिस वे वी कैलकुलेट द पॉपुलेशन साइज. वहाँ से हम लोग पॉपुलेशन साइज का स्टडी कर लेंगे. Z1 अल्फा बाई 2 रिप्रेजेंट द क्रिटिकल वैल्यू एंड द स्टैंडर्ड corresponding level of the confidence. Second, P prevalence or based on previous research. Because if you want to develop the prevalence and calculate the sample that someone presented the earlier report, कुछ लोग earlier report दिए होंगे, तभी वो आपको P मिलेगा, अदरवाइज तो P मिलेगा नहीं.
तो आपको उसके लिए रेफरेंस में जाना पड़ेगा। थर्ड, मार्जिन ऑफ एरर और प्रिसिशन, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड वन, here it is same as the जो पहले किए, कौन सा, क्रॉस सेक्शनल, बट हियर वी यूज द क्वांटिटेटिव वैल्यू, क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा मतलब जिसका हम न्यूमेरिकल मेजरमेंट कर सकते हो, जैसे हाइट हो गया, वेट हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, ग्लूकोज का लेवल हो गया, लाइक दिस, एंटीबॉडी का नेचर हो गया, ऑल दोस, जिसको आप क्वांटिटेटिवली स्टडी कर सकते हो, क्वालिटेटिव नहीं। यहाँ पे क्या होना चाहिए आपको, क्वांटिटेटिव स्टडी होना चाहिए। डिजीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये क्या हो गया, क्वालिटेटिव हो गया, उसको बीमारी हुआ या नहीं। यहाँ पे क्या है, क्वांटिटेटिव। Quantitative variables are factors that can be counted or numerically measured in the population, such as person's height, weight, age, arm length, blood pressure, temperature, glucose level, hemoglobin content, cholesterol, it is जो भी है, ठीक है। The same thing is like this. One thing is changed here only, that the PQ is converted into the standard deviation. PQ is converted into the standard deviation. और कोई चेंजेस नहीं है, ऑल आर द सेम। दैट जेड 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, दैट इज द जेड वैल्यू एट द डिफरेंट क्रिटिकल लेवल स्क्वायर, मल्टीप्लाइड बाय द एच डी स्क्वायर, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, डिवाइडेड बाय द मार्जिन ऑफ एरर और प्रिसिशन। यहाँ पे दोनों हो सकता है। इफ your error value is represented in the earlier work, because if you collected the SD, that there must be some error value, वहाँ पे कुछ error value होगा, नहीं होगा ऐसा बात नहीं है। तो in this condition it is better to calculate the value by the error, margin error, by the margin error without considering the precision, without considering the precision। अगर नहीं है तो आप precision लेके बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। हैंग कर रहा है। Here the next designing is a case control study। अब नहीं बोल रहा कि हम क्या है, केस कंट्रोल स्टडी। ये क्या बोल रहा है, एक केस होगा जिसको आप स्टडी करिएगा, दूसरा क्या होगा, कंट्रोल होगा। कंट्रोल मतलब नॉर्मल, उस पे वो जो फैक्टर का आप स्टडी करना चाह रहे हैं वो उस फैक्टर से एक्सपोज नहीं है, वो उस फैक्टर से एक्सपोज नहीं। सपोज जैसे अभी हम कालाजार का ही बात कर रहे हैं, सपोज वन एरिया, यू सेलेक्टेड वन एरिया वेयर द सैंड फ्लाई इज मोर प्रिवेलेंट, and you selected another area where the sand fly is not observed. So the factor which is responsible for the disease is not available in another area. Then one is the case condition and one is the control condition. That is the case control study. Another way, if you want to develop the two groups of rat, of course nowadays the sacrifice of the animals are prevented by the government of India. But if you have urgent need to you initiate your experiment in the animals, तो आपको परमिशन लेना पड़ता है, तो आपको परमिशन मिलता है। तो इन दिस कंडीशन एक वन इज एक्सपोज ग्रुप, उस एनिमल को आप क्या कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं किसी न किसी चीज से, और दूसरे को आप एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, एक कंट्रोल कंडीशन हो गया और एक एक्सपोज कंडीशन। इसको हम क्या बोलेंगे, केस कंट्रोल स्टडी। तो एक केस कंट्रोल स्टडी ऑल्सो नोन एज ए केस रेफरेंस स्टडी, इसको केस रेफरेंस भी हम बोल सकते हैं। केस विथ रिस्पेक्ट टू एनी डिफरेंस, जहाँ पे वो फैक्टर नहीं है, डिफरेंस का मतलब यहाँ वो फैक्टर नहीं है। इज ए रिसर्च मेथड
दैट इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग टू एग्जिस्टिंग ग्रुप्स। यहाँ पे क्या है, दो ग्रुप है विथ डिफरेंट आउटकम्स। ऑफ कोर्स कि अगर आपका एक एक्सपोज्ड है, एक नॉन एक्सपोज्ड कंडीशन है, तो उसका जो आउटकम होगा वो क्या हो जाएगा, अलग अलग। एक आउटकम तो होगा नहीं। बेस्ड ऑन ए की कॉजेटिव फैक्टर, जो किस पे आधारित है, वो करने के लिए कारक कौन है, की कॉजेटिव फैक्टर, किसके कारण से होगा। अभी हमने बोला कि अगर इफ द कालाजार इज प्रेवलेंट देन देयर इज नेसेसरी द अवेलेबिलिटी ऑफ द सैंडफ्लाई इज necessary. If the sandfly is not present in any particular area, then there is no chance of the transmission of the kalajar in the population. तो population को तो spread करेगा ही नहीं। तो that factor is the key factor. वो factor अगर नहीं है, spread नहीं होगा। Suppose बहुत डेंगू वगैरह आजकल फैल रहा है, नहीं होता है, या आ गया मौसम आ रहा है, तो इसमें क्या होगा। Suppose in any area the Aedes mosquito is not present, or the flavivirus is not carried to the population by any person। ये देख रहे हो कि सबसे पहले हमको लगता है कि 94 वगैरह में या 94 ही था, 93 या 94 था, दिल्ली में आया। उस समय पता ही नहीं चलता था कि बीमारी कौन है। आफ्टर दैट इट वॉज डायग्नोस्ड एज डेंगू। उसके बाद कहाँ पे आ गया, पटना में आ गया। उसके बाद कहाँ पे आ गया, मुजफ्फरपुर में आ गया। हम बिहार की बात कर रहे हैं। अब धीरे धीरे मधेपुरा में भी होने लगा। दैट मीन्स द फैक्टर इज कैरिड टू द पर्टिकुलर एरिया, वहाँ पे वो कैरिड हो रहा है। तो इफ द फैक्टर इज नॉट अवेलेबल देन देयर इज नो चांस ऑफ द डिजीज। सो इट्स प्राइमरी पर्पस इज टू इन्वेस्टिगेट वेदर एक्सपोजर इज एसोसिएटेड विद ए स्पेसिफिक आउटकम। इसका वर्क कहाँ से होगा, क्या इसकी आवश्यकता है, तो इट इज एसोसिएटेड विथ, ये कैसे एसोसिएटेड है कि इसके जो आउटकम्स है वो एक्सपोजर से के रेस्पेक्ट में कितना है। अगर कोई एक्सपोज है तो उसमें कितना है, नॉन एक्सपोज है तो उसमें कितना है। दैट इज द, इसलिए इसको क्या बोला गया, केस कंट्रोल स्टडी। और इसको ट्रीटमेंट में भी हम यूज करते हैं। ये तो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी हुआ, अगर इसको आप ट्रीटमेंट में भी करेंगे तो ट्रीटमेंट में भी यूज कर सकते हैं। बिकॉज इफ यू developed a medicine, you want to analyze the effect of the medicine in a particular disease। आप दो ग्रुप रखते हैं, एक को मेडिसिन, दोनों को डिजीज एक्सपोज कर देते हैं, और एक को मेडिसिन देते हैं, एक को नहीं देते। नाउ यू डिटरमाइन द लिथलिटी, तो कौन सा ज़्यादा लिथल है। इन अदर वे यू डिटरमाइन द टॉक्सिसिटी। अगर आप टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडी भी करना चाह रहे हैं तो यू एक्सप्लेन इट बाय द ट्रीटमेंट इन द 2 different groups or 3 different groups। दैट मीन्स इट हैज़ द मतलब इट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसर्च डिजाइनिंग फॉर द स्टडी इन द साइंटिफिक ग्रुप। सो हियर द सैंपल साइज, इफ यू डिटरमाइन द सैंपल साइज वी यूज द बोथ फैक्टर्स। यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम दोनों ग्रुप के फैक्टर्स को लेंगे। तो नाउ n रिप्रेजेंट द सैंपल, रिक्वायर्ड सैंपल, r रिप्रेजेंट द रेशियोज ऑफ द केस टू कंट्रोल। रेशियो, ये क्या है, रेशियो, रेशियोज ऑफ द केस टू कंट्रोल। केस और कंट्रोल में रेशियो क्या है, मान लीजिए कि जो केस है और कंट्रोल है उसमें रेशियो क्या है, कितना है, उसका रेशियो क्या है। पी पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन मतलब केस में जो हम यूज कर रहे हैं वहां पे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, और कंट्रोल जो हम यूज कर रहे हैं वहां पे कितने हैं। 2, हाँ हो गया। Z1 बीटा द पावर ऑफ द स्टडी, एंड आई से दैट इज द 0.8। यहाँ पे इसको क्या यूज करना है, 0.8, इट इज नॉर्मली 0.8। क्रिटिकल वैल्यू यहाँ भी वही 0.05, क्रिटिकल वैल्यू यहाँ पे क्या है 0.05, एंड व्हेन यू यूज द क्रिटिकल वैल्यू 0.05 दैट Z वैल्यू इज 1.96। नाउ यू कैलकुलेट हियर, आर आपको पता चल गया, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है कि है। रेशियो किसका है, केस टू कंट्रोल, केस और कंट्रोल का रेशियो क्या है। इन द प्रीवियस स्टडी, अगर कहीं स्टडी हुआ है तो वो बतला देगा कि केस और कंट्रोल का क्या नेचर है। पी क्या बतला रहा है, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन, टोटल पॉपुलेशन का प्रोपोर्शन क्या है,
केस का और कंट्रोल का। जेड 1 माइनस बी सब स्क्रिप्ट, हाँ पावर हुआ, ये कितना हुआ 0.8। जेड 1 माइनस अल्फा बाई 2 1.96। R P1 P2 square. In this way you calculate the sample size. You calculate the sample size. इसके द्वारा आपको सैंपल साइज पता चल जाएगा कि आपको कितना सैंपल साइज लेना है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। फोर्थ वन, सैंपल साइज एस्टिमेशन फॉर कंपैरेटिव स्टडीज। ये कैसा डिजाइनिंग है रिसर्च का? यहाँ पे आप कंपैरेटिव स्टडी करना चाह रहे हैं किसी दो पॉपुलेशन का या किसी दो इफेक्ट का, किसी दो पॉपुलेशन का या किसी दो इफेक्ट। कंपैरेटिव स्टडी इन्वॉल्व द एग्जामिनेशन, कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स। जो अलग अलग सब्जेक्ट है या जो कॉन्सेप्ट है उसका आप स्टडी कर सकते हैं। These studies employ both quantitative and qualitative methods. इसमें आप क्वांटिटेटिव भी यूज कर सकते हो और क्वालिटेटिव, टू एसेस सिमिलरिटी एंड और डिफरेंस बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ सब्जेक्ट्स। कि क्या दोनों सब्जेक्ट एक समान है या दोनों सब्जेक्ट अलग है। अगर ऐसा कोई स्टडी आप डिजाइन कर रहे हैं तो यहाँ पे अगेन PQ नहीं यूज हो रहा है, यहाँ पे क्या यूज हो रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन। द S2 स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय precision, error of margin, confidence interval and error, that is precision, that is the precision. Here we use both things. यहाँ पे आप देखिए दोनों यूज हो रहा है। ये क्या यूज हो रहा है? error, हाँ पावर ऑफ मार्जिन, पावर ऑफ मार्जिन, पावर ऑफ मार्जिन 0.8। और यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? precision, precision 0.05। And in this way you determine the number of sample size. Clear? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं किसी को? यह दिक्कत इसको आप पढ़ ले। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करता है इसमें, एंड इट इज नेसेसरी टू गो थ्रू सम सॉल्यूशंस। कुछ क्वेश्चंस इसका बनाइएगा। और ये मिलेगा कहाँ पे? अब ये मिलेगा नेट के क्वेश्चन में और कहीं नहीं मिलेगा। नेट वेगा का 8-10 वर्ष का क्वेश्चन देखिएगा, कहीं ना कहीं 1-2 क्वेश्चन मिलेगा इसका, तो उसको देख कर थोड़ा बनाइएगा, वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है? ग्रुप बी में होगा तो सिंपल वाला होगा। ग्रुप बी वाले में आया होगा तो सिंपल 2 जो क्वेश्चन है ऊपर वाला उसी में से नोन अनोन करके आएगा। अगर इधर से कुछ आया होगा तो ग्रुप सी में आया होगा, तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नाउ यू एड अप, इसको आप सम कर लीजिएगा किस चीज़ से? मैथड्स ऑफ सैम्पलिंग। तो अभी हमने बोला आपको तुरंत कि मेथड्स ऑफ सैम्पलिंग जो होगा, एक होगा रैंडमाइज, हल्का सा हम ब्रीफ कर देते हैं, उसको पढ़ लीजिएगा, उसको अलग से हमको पढ़ाने की आवश्यकता भी नहीं है, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। एक होता है पर्पसी, एक होता है रैंडमाइज। पर्पसी मतलब आप एक इच्छा लेके चल रहे हैं कि हमको ये चीज़ देखना है। जैसे मान लीजिए कि आपको ये लेके चलना है कि इस पॉपुलेशन में ये बीमारी है कि नहीं। इन दिस कंडीशन यू मूव ऑल थ्रू द पॉपुलेशन, क्योंकि आपने उसको फिक्स कर दिया। दूसरा होता है रैंडमाइज, फिर आपने पॉपुलेशन फिक्स नहीं किया, आप बोले कि इस पॉपुलेशन में 10,000 लोग हैं, हमको इसमें देखना है कि ये बीमारी है या नहीं है तो इसका प्रिवेलेंस क्या है। तो नाउ यू रैंडमाइज, तो उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम सैम्पलिंग मेथड। उसको हम क्या बोलते हैं? रैंडम सैम्पलिंग मेथड। दूसरे को क्या बोलते हैं? पर्पसिव सैम्पलिंग मेथड। जब आप रैंडम सैम्पलिंग मेथड में जाएंगे तो एक होगा सिंपल रैंडम सैम्पलिंग मेथड, एक होगा स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग मेथड। सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मेथड कि आपका कोई स्ट्रेटिफिकेशन नहीं है, आप गए मतलब पॉपुलेशन नहीं है, मतलब योर पॉपुलेशन इज होमोजीनियस, योर पॉपुलेशन इज होमोजीनियस, आपका जो पॉपुलेशन है वो होमोजीनियस है, तो वहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यू गो एंड सिंपली रैंडमाइज द पॉपुलेशन। बट योर पॉपुलेशन, इफ योर पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस, अगर आपका पॉपुलेशन क्या है? हेट्रोजीनियस है, तो हेट्रोजीनियस अगर होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? स्ट्रेटिफाइड करना पड़ेगा।
उसको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेटिफाइड, तब उसको हम बोलेंगे स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। एंड इन द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग द टोटल नंबर, अगर मान लीजिए कि 100 है, सपोज करिए कि 100, और कोई दो पॉपुलेशन आप ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल जस्ट आई एम से, एक का 600 आदमी है और एक का 400 आदमी है, तो रेशियो क्या हो गया, 6-4 का रेशियो हो गया, या 3-2 कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है, 3-2 कर दीजिए। एंड वेन यू मूव इन द फील्ड, देन जो 600 का आदमी है जिसका पॉपुलेशन है उसका 3, और फिर जो 400 है उसका 2, इसी रेशियो में आपको नंबर डिटरमाइन करना पड़ेगा सैंपल का। क्लियर? तो दैट इज द रैंडमाइज सैंपलिंग मेथड, दैट इज द randomized sampling method. Another way, the sectorial randomization. In some work, it is referred as the sectorial randomization. Sectorial randomization का मतलब कि you want to study any population of the whole Bihar. आप पूरे बिहार के किसी पॉपुलेशन का स्टडी करना चाह रहे हैं, या इन मधेपुरा में ही करना चाह रहे हैं, तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मूव डोर टू डोर इन ऑल विलेजेस। ये बहुत मुश्किल है कि आप हर विलेज में जा जाकर पूछना शुरू कर दीजिए। इन दैट कंडीशन यू एट फर्स्ट यू रैंडमाइज द एरिया और विलेजेस। सबसे पहले आपको क्या रैंडमाइज करना पड़ेगा, विलेजेस, और तब विलेजेस को रैंडमाइज करके कहाँ जाना होगा, उस विलेज में, एंड नाउ अगेन रैंडमाइज योर पॉपुलेशन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेक्टोरियल रैंडमाइजेशन। सबसे पहले आपने किसको रैंडमाइज कर दिया, सेक्टर को। तो in population when the area is your large, but in agriculture in the field